So last week we were seeing in Hebrews chapter 6 about the need to press on to perfection. पिछले हफ्ते जो है हमने अध्ययन किया जिसमें हमने सीखा कि हमें सिद्धता की ओर कैसे बढ़ना है। We also saw that what are the dangers of living in deliberate sin. और हमने ये भी देखा कि जानबूझकर अगर हम पाप में जीते हैं तो उससे क्या हो सकता है। But the writer of Hebrews is telling that we are in verse 9 that we are convinced of better things concerning you. और हम 9वें वचन में देखते हैं कि जो इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि लेकिन हम तुम्हारे विषय में इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा रखते हैं। And today we'll see from verse 10 onwards, for God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown towards his name in having ministered and is still ministering to the saints. और 10वें वचन से हम आज अध्ययन करेंगे जहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। So whatever, it's a very encouraging word to remember that whatever we do for the Lord and for God's people, God will never forget that. ये बहुत ही हमें दृढ़ता देने वाला वचन है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर जो है अन्याय नहीं है और वो जो भी हम परमेश्वर के प्रति जो प्रेम के कारण जो भी हम कार्य करते हैं उसे वो कभी नहीं भूलेंगे। We know this verse, I think all of you know this verse in Matthew 10:42 where it's written, "Whoever in the name of the disciple gives to one of these little ones even a cup of cold water to drink, truly I say to you, he shall not lose his reward." जो हम सबको ये वचन हमें याद होगा जो मत्ती के 10वें अध्याय और उसका 42 वर्स में दिया है, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। So God also wants us to remember that there are many saints who have done wonderful things to us. So we also should be grateful to them, and we should also not forget what they have done for us. प्रभु इसके द्वारा हमें याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर के बहुत ऐसे संत हैं जो हमारे आशीष के कारण बने हैं और हमें उनके प्रति हमें आभारी रहना चाहिए और ये भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने क्या किया है हमारे लिए। Now we can see in verse 11, we desire that each one of you show the same diligence so as to realize the full assurance of hope until the end. और 11वां वचन पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। So what is our hope? Our hope is to become like Jesus. और हमारी जो आशा है वो क्या है? हमारी आशा है कि हम यीशु मसीह के समान बन जाएं। So in order to have that, we should have, it's written, full assurance of hope. So if we have to have that full assurance of hope, we should show the same diligence, or there is a need to show real diligence in a Christian life. और ये जो आशा है वो हमारे साथ हमेशा रहे, इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। We can see that emphasis is given in many portions in the book of Hebrews. और हम देखते हैं इस बारे में बहुत बार जो है इब्रानियों की पुस्तक में कहा गया है। We can see in chapter 3 verse 6 it is written, "We are his house, provided if we hold fast our confidence
and boast of our hope firm until the end. और ये हम इब्रानियों का 3रा अध्याय उसके 6वां वचन में देख सकते हैं। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। We can see again that emphasis in chapter 3 verse 14. For we'll become partakers of Christ when we hold fast the beginning of our assurance firm until the end. और 14वें वचन में भी हम देखते हैं, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। Again in chapter 4 verse 11 it's written, when the writer is telling about rest, that let us be diligent to enter that rest. और फिर से हम 4था अध्याय का 11वें वचन में देखते हैं कि लेखक कहता है कि हम प्रयत्न करें कि हम उस विश्राम में प्रवेश करें। So just like what we said last time, just like all of us desire to have perfect health, we have to show diligence so that we can have perfect health in our spiritual life also. जिस प्रकार पिछले बार हमने याद दिलाया कि हम सब चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, वैसे ही हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम आत्मिक रीति से भी स्वस्थ रहें। And we can see in verse 12, so that you will not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. और 12वां वचन, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। I was reading the same verse in Living Bible. It was quite enlightening to see that it was written like this. एक दूसरे अनुवाद में मैं इसे पढ़ रहा था और मुझे बहुत जो उत्तेजना मिली वो पढ़ के, उसका ऐसा अनुवाद है, Knowing what lies ahead of you, you won't become bored with living a Christian, nor become spiritually dull and indifferent. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे आगे क्या जो आशा प्रभु ने रखा है, इसीलिए तुम्हें जो है अपने क्रिस्ती जीवन जीने से ऊबना नहीं है और not get bored. Nor become spiritually dull and indifferent. और जो आत्मिक रूप से हमें जो है डल नहीं होना है और indifferent. और उसके प्रति जो हम निंदा नहीं दिखाना है, उस पे हमें हमेशा जोर देना है। God wants a Christian life to be a life, an exciting life. प्रभु चाहता है कि हमारा जो क्रिस्ती जीवन है वो हमेशा जो है उत्तेजना से भरा हुआ हो। I remember before I get retired, some people said that many people after they get retired they die fast, or they are so bored with life, not knowing what to do, things like that. मुझे याद है मुझसे कुछ लोगों ने ऐसे कहा जब मैं रिटायर होने वाला था कि जब लोग रिटायर हो जाते हैं वो जल्दी गुजर जाते हैं क्योंकि उनको ऊब जाते हैं जिंदगी से, वो नहीं जानते कि उन्हें आगे क्या करना है। But in 2019, that means almost 3 years are over now after my retirement, but I'm not bored. I'm really excited about my Christian life. लेकिन आज जो है 3 साल हो गए हैं मेरे रिटायर होने के बाद, लेकिन आज भी मैं अपने क्रिस्ती जीवन के बारे में मैं ऊब नहीं गया हूँ, लेकिन मैं बहुत ही प्रोत्साहन प्राप्त करता हूँ। The reason I believe if we take up our cross every day in our Christian life, we walk the way of the cross, we fight the good fight in Christian life, we'll never be bored in our Christian life. क्योंकि अगर हम अपना क्रूस रोज उठाएंगे
और ये जो अच्छी लड़ाई है, जंग है, उसमें हम भाग लेते रहेंगे तो हम कभी अपने क्रिस्ती जीवन से ऊब नहीं जाएंगे। Almost for more than 1 year, I was looking after my mother and almost at home most of the time. But no, it is exciting because every day I've got a task of living a life where there is a constant fight, and it's a wonderful life. और 1 साल तो मैं पूरा अपने माँ का देखभाल कर रहा था और रोज मुझे उठकर यही काम करना पड़ता था, लेकिन मैं ऊब नहीं गया उसके कारण, क्योंकि रोज एक जंग के समान है मेरा जीवन और मुझे have to fight. Yeah, fight the good fight of faith. और ये जो अच्छी जो जंग है विश्वास का, उसमें मैं लड़ता रहता हूँ। Living a life of fellowship with Jesus is always exciting. जब भी हम यीशु मसीह के साथ संगति में रहते हैं तो ऐसा जीवन हमेशा जो है प्रोत्साहन देने वाला जीवन है। There is a verse in Proverbs chapter 14 where it's written, it's in Living Bible, it's written like this: the life of a godly man is exciting, but a backslider in life is bored with his life. जो एक ऐसा वचन है जो Proverbs 14:14, नीति वचन 14 जो एक दूसरे अनुवाद में है, वहाँ ऐसे लिखा है कि एक जो धर्मी व्यक्ति है उसका जीवन हमेशा life of a godly man is exciting, but a backslider in life is bored with life. जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। So here it's written that we have to show the diligence and we should not become sluggish in our Christian life. तो हमने यहाँ देखा कि वचन में दिया गया है कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए। Verse 12. कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए। But we have to obtain the promises through faith and patience. लेकिन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। That is something that we have to remember always. Faith along with patience is required to inherit the promises. ये एक ऐसी बात है जो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि सिर्फ हमें विश्वास और धीरज के द्वारा ही प्रतिज्ञाओं के वारिस बन सकते हैं। Here it's written about the life of Abraham. We can also remember the life of Job. Abraham, he got the promise that he will have a child, he will have a son, he will have children like sand at the seashore and as stars in heaven when he was 75 years old. तो हम यहाँ वचन में देखते हैं कि इस अध्याय में अब्राहम के बारे में लिखा है, लेकिन हम अय्यूब के बारे में भी हम सोच सकते हैं। यहाँ अब्राहम को जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी कि उसके संतान जो हैं जैसे रेती होती है वैसे, और जैसे सितारे होते हैं, तारे होते हैं आसमान में, वैसे होंगे। He got that promise when he was 75 years old, but he actually got a son after 25 years when he was 100 years old. उन्हें ये जो वादा है वो जो जब 75 साल के थे तब उन्हें वो वादा परमेश्वर ने दिया, लेकिन जब वो 100 साल के थे तभी उनका एक संतान हुआ और ये जो वादा है वो पूरा हुआ। So in order to obtain that promise he had to wait quite a lot of time, but he waited patiently and God has to teach him many lessons, and in the end we can see that he got Isaac as his promised son. तो हम देखते हैं कि कैसे अब्राहम ने जिन्हें वादा मिला था वो उसी
वादे पर टिके रहे, उन्होंने धीरज बांधा और विश्वास रखा, और उन्हें बहुत समय के बाद उन्हें अपना जो इसहाक संतान है वो पैदा हुआ। In the life of Job also, we know that he lost almost everything. His whole body was full of sickness. अय्यूब के बारे में भी हम जानते हैं कि उन्होंने अपनी सारी जो संपत्ति है, सब बच्चे, सब उन्होंने खो दिया, और अब उनका शरीर भी वो जो ऐसे बीमारी से पीड़ित था। He was not knowing why God allowed such a terrible things to happen in his life. वो जानता नहीं था क्यों परमेश्वर ने ऐसे जो परिस्थितियां हैं उनके जीवन में दिया। But God had to teach him a lesson, so he had to endure it patiently. He endured that for many years. Then God could lead him to a higher life, to a higher level in his Christian life. तो उन्होंने जो अनुभव किया उसके द्वारा उन्हें बहुत सारी सीख मिली, और वो उन्होंने धीरज और धाड़स से बांधकर इन सब बातों की सामना किया, और अंत में वो जो प्रभु उन्हें सिखाना चाहते थे वो उन्होंने सीख लिया। We can see in chapter 6 verse 13 and 14, for when God made the promise to Abraham, since he could swear by no one greater, he swore by himself, saying, I will surely bless you and I will surely multiply you. और 13 और 14 वचन, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बढ़ा ना पाया, तो अपने ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। We can see that we can see in Genesis chapter 22 verse 16 to 18, it's written, by myself, उत्पत्ति का 22वां अध्याय और verse 16 to 18, और 16 से 18 तक हम पढ़ेंगे। It's written, by myself I have sown, says the Lord, because you have done this thing, and have not withheld your son, your only son. In blessing I will bless you, and in multiplying I will multiply your descendants as the stars of heaven and as the sand in the seashore. यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपने ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। And we can see in verse 15, having patiently waited, he obtained the promises. और हम इब्रानियों 6:15 में देखते हैं कि और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। We can see many times in our life, God does not do things quickly in our life. हम देखते हैं कि परमेश्वर जो कार्य करते हैं वो कई बार जो देरी से वो हमारे जीवन में पूरी होती है। For example, to lead us to victory over sin, sometimes it takes many years. उदाहरण के लिए हमारे जो पाप हैं उसके ऊपर विजय पाने में कई बार हमें समय लग जाता है। To really come to become a spiritual person, it takes many years. और एक आत्मिक व्यक्ति बनने में भी हमें कई साल लग जाते हैं। There is a verse in Deuteronomy chapter 7, verse 22, where it's written, this is a promise that God gave to the people of Israel, and God, the Lord your God, will drive out these nations before you. Just see what is written. Little by little, you will be unable to destroy them at once, lest the beasts of the field become too numerous for you. Deuteronomy chapter 7, verse 22. व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय और उसका 22वां वचन,
तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा। तो यहाँ लिखा है कि धीरे धीरे निकालेगा। Can we, sister, remaining that you तो will. तू एकदम से उनका अंत ना कर सकेगा, नहीं तो बनाएले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे। See, what are these beasts of the field? जो पशु हैं, जो बनाएले पशु हैं, ये क्या है? You can say that is pride in our Christian life. ये हमारे जीवन में जो क्रिस्ती जीवन में जो हम घमंड करते हैं। For example, imagine we got victory over anger very quickly. What can usually happen is we look down on others who are defeated in anger, but then we become worse sinners. Pride is a terrible sin, but anger is a terrible sin, but 100 times worse is pride. तो कई बार हम उदाहरण के लिए हम ऐसा ले सकते हैं कि अगर हमें क्रोध के ऊपर हमें जो है विजय मिल गया, तो हम दूसरे जो इस पाप में गिर जाते हैं उन पर हम घृणा से हम देखते हैं, और ये इसीलिए कि हम उस बात पर अहंकार करने लगते हैं। और ये जो अहंकार या घमंड है, ये जो पाप है, ये क्रोध से भी बढ़कर है। So what God wants us to do in our life is to give victory with humility. परमेश्वर जो कार्य हमारे जीवन में करना चाहता है वो यह है कि हम विजय पाए, लेकिन हम उसमें विनम्र रहे। That is why this patience is very, very important. इसीलिए धीरज बहुत ही जरूरी है। Many times you may see in your life that you are defeated again and again, but don't get discouraged. कई बार आप देखते होंगे अपने जीवन में कि आप बार बार पाप में गिर रहे हैं, लेकिन आपको निराश नहीं होना चाहिए। What God is trying to teach us is that we become humble in our life. परमेश्वर इसके द्वारा हमें ये सीख देना चाहता है कि हम नम्र रहें। Always remember, we can obtain promises not just by faith, but faith and patience. हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमें जो है प्रतिज्ञा, परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है वो मिल सकता है, लेकिन वो विश्वास से ही नहीं, विश्वास और धीरज को बांधे रखने से। And now we can see, continue in verse 16. और हम 16वें वचन में देखेंगे, For men swear by one greater than themselves, and with them an oath is given as a confirmation, is an end to every dispute. In the same way, verse 17, God desiring even more to show to the heirs of the promise the unchangeableness of his purposes, interposed or guaranteed with an oath. और 16वां 17वां वचन, मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसीलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। So we can see that when God was giving that promise to Abraham, he had sown by himself. जब परमेश्वर ने अब्राहम को वो प्रतिज्ञा दिया, तो उन्होंने अपने ही से उन्होंने शपथ खाई थी। And the reason is because God is trying to tell them that, see, I will surely help you to obtain this promise. The promise is there, along with that, oath of God is also there. तो परमेश्वर यहाँ अब्राहम को यह समझाना चाहते थे कि जो उन्होंने प्रतिज्ञा की है उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। वो उन्होंने सिर्फ प्रतिज्ञा ही नहीं दी, उन्होंने एक शपथ भी खाई। And we can see in verse 18, so that by two unchangeable things. See, what are these two unchangeable things? One is the promise of God, and the other is the oath of God. और 18 वचन में हम देखते हैं, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, ये जो बेबदल बातें हैं ये क्या है? जो पहली बात है वो है प्रतिज्ञा, और दूसरी जो है शपथ। And it's written, in which it is impossible for God to lie,
जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। And then is written that we have taken refuge, would have strong encouragement to take hold of the hope that is set before us. और फिर लिखा है, दृढ़ता से हमारा दाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसीलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। I think in NKJV it's written, we have fled for refuge to lay hold of the hope that is set before us. और एक दूसरे जो अनुवाद है NKJV, उसमें लिखा है कि हम भाग कर गए हैं उस शरण को पाने के लिए। That means we cannot find refuge or safety or protection in the world. We have from the world and from all the attractions of the world, we have fled to lay hold of this hope that is set before us. तो इसका ये मतलब हुआ कि हम जो भागे हैं, हम इस दुनिया से और इसके जो आकर्षण हैं उनसे हम भागे हैं, क्योंकि इस दुनिया में हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है। इसीलिए हम परमेश्वर की ओर भागे हैं। जो ये सब बातें हैं, दुनिया की बातें, उसे छोड़कर हम परमेश्वर की ओर हम भागे हैं। See, God does not want us to find any refuge or any safety or protection in the world. We should find, actually we cannot find any safety or protection in the world. We can truly find safety and refuge only in God. परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस दुनिया में ना हम सुरक्षा पाएं, ना हम कोई शरण पाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हीं में अपना शरण और अपना जो सुरक्षा है उसे पाएं। See, I was thinking, what exactly is this oath which is written here? जो यहाँ लिखा गया है शपथ, ये क्या है, इसके बारे में मैं सोच रहा था। When we read 2 Peter, we can see two things written there. 2 Peter chapter 1 verse 3 is written. दूसरा पत्रस chapter 1 verse 3 it's written, His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness through the true knowledge of Him who called us by His glory and excellence. And verse 4, He also has granted to us precious and magnificent promises. और दूसरा पत्रस 1 का तीसरा वचन And verse 4. और तीसरा और चौथा वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। So everything needed for life and godliness is given to us. तो यहाँ लिखा है कि जो भी हमें जरूरी है जीवन और भक्ति से जो संबंध रखता है हमें दिया गया है। First of all, God has given that His divine power, and secondly, His magnificent promises. और उन्होंने हमें ईश्वरीय सामर्थ्य दी है और बहुत सारे ऐसे बहुमूल्य जो प्रतिज्ञा हैं। So here also we can see God has given promise, and that oath, we can say that oath is the divine power or the Holy Spirit that He has given right inside us. तो इस अध्याय में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने है जो हमें शपथ दिया है और हमें प्रतिज्ञा भी दी है। और जो शपथ है वो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है उसके द्वारा जो शक्ति है वो we can see, we can also see in Ephesians chapter 1 verse 14. हम इफिसियों का पुस्तक पहला अध्याय और उसका 14 वचन में भी देख सकते हैं। I will read that in Living Bible. It's written, His presence within us, or we can say Holy Spirit within us, is God's guarantee that He will really give all that He promised. इफिसियों पहला अध्याय उसका 14 वचन, वह उसके मोल लिए हुओं की छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयान है
कि उसकी महिमा की स्तुति हो। So just like it's written, God's guarantee that all that He has promised will get fulfilled in us. What is that guarantee? He has given Holy Spirit right inside us. तो जो गारंटी परमेश्वर ने दिया है वो हमें जो है पवित्र आत्मा के रूप में उन्होंने हमें दिया है। Actually, we are living, my dear brothers and sisters, we are living in such wonderful times, really speaking. प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें एक ऐसा अवसर और समय में जीने का हमें मौका दिया है। He has not just given us wonderful promises, He also has given us Holy Spirit right inside us, which is a guarantee that that He will lead us. Holy Spirit will lead us to such a wonderful life. तो परमेश्वर ने सिर्फ हमें प्रतिज्ञाएं ही नहीं दी, उन्होंने अपना जो पवित्र आत्मा है वो भी हमारे अंदर उन्होंने दिया है, जो हमारे लिए एक गारंटी के रूप में है कि वो हमें वहां तक पहुंचाएंगे जहां हमें पहुंचना है। So as is written in verse 18, we have got strong encouragement to lay hold of the hope that is before us. तो जैसे 18 वचन में लिखा है कि एक ऐसा आशा जो परमेश्वर ने हमारे सामने रख छोड़ी है जिसे हम प्राप्त करें। Just like Jesus was there with his disciples, today the third person of Trinity, Holy Spirit, is right inside us to help us in our Christian life. जिस प्रकार यीशु अपने चेलों के साथ थे, वैसे ही आज जो है पवित्र आत्मा हमारे साथ, हमारे संग वो है जो हमें आगे चलाता है। And we see in verse 19, this hope we have as an anchor of the soul, a hope both sure and steadfast, one which enters within the veil, verse 20, where Jesus has entered as a forerunner for us, having become a high priest forever, according to the order of Melchizedek. और 19वां और 20वां वचन, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मल्कीसदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। See, whenever you see about the word hope, please remember the hope is that we are going to be like Jesus Christ. जब भी आप ये जो वाक्य है आशा को देखते हैं तो अपने आप को याद दिलाएं कि हमारी आशा यह है कि हम यीशु मसीह के समान बन जाएंगे। See, it's written, the hope is like an anchor of the soul. तो यहाँ लिखा गया है कि आशा है जो है हमारे प्राण के लिए एक लंगर जैसा है। See, anchor is, see, when a ship is there in the sea, if the anchor is not put, the ship will slowly drift away to some other place. तो जो एक लंगर होता है, जो जहाज में होता है, वो अगर वो लंगर नहीं डाला गया है तो जो जहाज होता है वो तूफान या आंधी के कारण वो इधर उधर भटकने लगता है। So when strong wind and terrible winds are there in the sea, when that anchor is put to the ocean bed, the ship is steady. जब तेज आंधी और तूफान चलती है, अगर वो लंगर जो है वो डाला गया है समुद्र के तट पर, तो वो जो जहाज है वो भटकेगा नहीं, वो स्थिर रहेगा। But just remember what is written here today. That anchor, what is that anchor? That anchor in a Christian life is just like that anchor is put to the ocean bed. That anchor is moved to God or fixed, or we can say fastened to God. तो जैसे वो जहाज का जो लंगर है वो समुद्र के भीतर वो लगा रहता है, वैसे ही जो आशा है वो एक लंगर के रूप में परमेश्वर तक वो पहुंचता है। Here is written, it's a hope that enters right inside the veil. और यहाँ लिखा है वो ऐसी आशा है
जो पर्दे के भीतर तक पहुंचता है. We know between holy place and most holy place there was that veil. हम जानते हैं कि जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा होता था. We can say that veil is a picture of our self-will. वो जो पर्दा है वो हमारा जो स्वयं खुद की इच्छा है उसे दर्शाता है. Now today, by this hope in God, we can go right inside the veil and into the presence of God. तो इस आशा के कारण जो हम इस पर्दे को चीर कर जो परमेश्वर के जो into the presence of God. कि जो कि जो संगति में हम रह सकते हैं. So we can say it's a tremendous encouragement to remember that that this, and because of this anchor we can be we need not be shaky when real difficult situations come. तो ये बहुत ही हमें प्रोत्साहन देता है कि जब भी हम परेशानियों का सामना करते हैं तो हमें अस्थिर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये लंगर है वो परमेश्वर के अनुपस्थिति तक हम पहुंच सकते हैं. So we can think practically. Just imagine we are going through some real tough situation. हम प्रायोगिक रूप से हम सोच सकते हैं कि अगर हम किसी बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं, maybe we are going through misunderstanding, or maybe we are going through some anxious and difficult situation. शायद लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं या हम चिंतित है किसी बारे में, किसी बात के बारे में. First of all, we have got God's wonderful promises in which we can put our faith. तो पहली बात ये है कि हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मिली हैं जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं. Secondly, we have got third person of Trinity, Holy Spirit, right inside us, God's presence inside us. दूसरी बात ये है कि जो तृत्व के जो तीसरा व्यक्ति है, जो पवित्र आत्मा, वो हमारे अंदर उपस्थित है और इस प्रकार परमेश्वर की जो संगति है वो हमें मिलती है. And not only that, we can go right inside the veil into fellowship with God, which will keep our ship really, that is spiritual ship, really steady when real strong winds are there in a Christian life. और जो पर्दे के भीतर तक हम जा सकते हैं, जिसके कारण जो है हम जब अपना जो जहाज है, जो विश्वास का जहाज है, वो ठोकर नहीं खाएगा, वो स्थिर रहेगा जब भी आंधी या तूफान का सामना करना पड़े. See, I want to tell you that these are not just flowery words. This can become really practical in our Christian life. ये जो ऐसे ही कुछ काल्पनिक जो वचन नहीं है, लेकिन ये जो ऐसे वचन हैं जो हमारे प्रायोगिक क्रिस्ती जीवन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. We really have to come to faith in these things, that all these things are ours. सिर्फ हमें पूरी तरह विश्वास होना चाहिए कि ये सब बातें हमारे लिए लिखी गई हैं. And we can see in verse 20, he has entered as a forerunner for us. This is exactly the way Jesus went when he was on earth. और 20वें वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जो है हमारे लिए अगुवे के रूप में उन्होंने प्रवेश किया है. उन्होंने जो भी हम सामना करते हैं, इन सब बातों का उन्होंने भी सामना किया है. Why all these things are written? So that when we face difficult situation, we have to remember all this. We have to really practice all this, and our spiritual ship can be steady in spite of all tufan, all types of strong winds all around us. तो ये जो वचन है वो इसीलिए लिखा गया है कि जब भी हम ऐसे तूफानों का सामना करना पड़े तो जो हमारा जीवन है वो जो आत्मिक जीवन है
वो इधर उधर हिल ना जाए, लेकिन वो स्थिर रहे और दृढ़ रहे, So may God help us. और परमेश्वर हमारे मदद करे। I will highlight on the verse number 10, where it says, where it says, "For God is not unjudged, so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints, as you still do." मैं जो है 10वें वचन पर जोर डालना चाहता हूँ, जहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। I want to underline this word, this sentence actually, for it says, "For God is not unjudged." जो ये वचन है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, ये जो वचन मैं अपने आप के लिए मैं उसे रेखांकित करना चाहता हूँ, That it overlooks your work. कि परमेश्वर जो हमारी कार्य है उसे वो अनदेखा नहीं करता है। You know, in our life, sometimes when we do anything good, and when we are not rewarded, you know, then we always say, you know, God is not being judged to us. तो कई बार ऐसे हमने देखा है कि हमारे जीवन में जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं और उसके लिए हमें जो परिणाम नहीं मिलता है, तो हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। For example, whenever we pray, our prayers are not answered, so we grumble about it. अगर हमने प्रार्थना की है किसी विषय में और हमें उसका उत्तर नहीं मिला, तो क्या हम कुड़कुड़ाते हैं? If we grumble, it means we are trying to say, in other words, like God is not being judged to us. जब हम कुड़कुड़ाते हैं, उसका ये मतलब हुआ कि परमेश्वर मेरे और न्यायी नहीं है। So I will read a scripture from Proverbs 19, verse 17. मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, नीति वचन 19 का 17वां वचन। Proverbs 19, verse 17. नीति वचन 19 का 17वां वचन। It says, "Whoever is generous to the poor lends to the Lord, and he will repay him for his deeds." जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, वह यहोवा को उद्धार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। So God is telling us that He will repay, He will reward us for all that we have done for Him, for His kingdom. You know, whatever we have done in a righteous way, God will always repay it. तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का कहना यह है कि अगर हम कुछ जो धर्मी रीति से हम कुछ अच्छे बातें करते हैं, तो वो हमें प्रतिफल देगा। Being generous means, I would say, it's like, you know, not expecting anything back, I would say, in other words. जब हम उधार देते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि जब हम उदार दिल के होते हैं, कि ये मतलब होता है कि हम उसके फल स्वरूप में कुछ नहीं चाहते हैं। So when we do anything for the kingdom of God, do we really expect anything, or we do it because we want something? हम जब ऐसे कुछ कार्य करते हैं, तो हम उसका प्रतिफल देखने के लिए करते हैं या कुछ पाने के लिए करते हैं? Because when we do something for the kingdom of God, but we don't have any expectation, but still, because of not having the expectation, but God will reward us in that.
तो जब भी हम ऐसे कार्य करते हैं तो और हमारे अंदर ऐसे कोई प्रतिफल मिलने की आशा नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमें उस कार्य के लिए प्रतिफल देगा। You know, you have heard this verse many times in our church where it says, you know, where God says, you know, like people, when they do anything, when they come at the judgment time and they say, oh, we have done this for you, Lord, we have done that for you, Lord. You know, we have healed, we have raised the dead. But God tells them, I don't know who you are. तो हमने ये वचन बार बार कलीसिया में सुना है, जहाँ कहा गया है कि हमने जो है स्वर्ग के राज्य के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे जो मरे हुए हैं उन्हें जिलाया है और ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं। तब परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। Because the things that the way we do it will be rewarded according to that. जिस उद्देश्य से हम करते हैं उस उद्देश्य का हम प्रतिफल पाएंगे। If we are not judged in our own ways in doing things, then how we expect God to be judged to us also? What did you say, brother? I couldn't understand. When we do anything for, I will put in another word. If we do anything only for self gain, so do we think that God is going to reward? तो अगर हम अपने खुद के लाभ के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा? So let us really understand this verse, because for God is not unjust, because it's very important. He will repay everything according to your deeds. According to our deeds, He will repay. He will repay it. ये जो बात है, ये जो वचन है, हमें ठीक तरह से समझना चाहिए कि जो भी हम कार्य करते हैं उसका प्रतिफल उसी के अनुसार परमेश्वर हमें देगा। So we must check our own heart. Are we doing it generously, or are we doing it only for self gain? तो इसीलिए हमें अपने आप को परख कर देखना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो हम उदारता से कर रहे हैं कि अपने ही लाभ के लिए कर रहे हैं। Amen. Thank you, sister. भाई सैम जब शेयर कर रहा था, एक दो वचन मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 32, अगर आपके पास समय है बाद में खोल के पढ़ सकते हो। हिब्रूज चैप्टर 10:32, वहां पर लिखा है कि उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों को बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। 33, कभी कभी तो तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाति में थे। 34, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुख हुए और अपनी संपत्ति आनंद से लूटने दी, यह सुनकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। तो ये लेखक जो वो पिछले दिनों, यानी जब आप मसीह में आते हो, हम मसीह के लिए बहुत सारा प्रेम से प्रभु से प्रेम करते हैं और बहुत सारा काम करते हैं, जैसे कि इब्रानी चैप्टर 10:32 में लेके के फर्स्ट सेंचुरी की वो लोग प्रभु से इतना प्यार करता था, यानी कलीसिया से प्रेम करता था, प्रभु से प्रेम करता था, उनकी संपत्ति लूटने देता था, और कलीसिया में ऐसा कोई गरीब है उनको अपनी सारा चीज देता था। तो ये सबूत है कि हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैं आपको प्रोत्साहन करता हूं कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे अंदर ये चीज होना चाहिए कि हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो ये गुण हमारे अंदर होता है, जैसे कि भाइयों को क्षमा करना, या जो नीडफुल है उस भाई को कुछ देना, या कोई जरूरतमंदों को उनकी पूरी करना, जैसे कि फर्स्ट सेंचुरी में वो लोग करते थे। ये सारा गुण
हम तब हमारे अंदर होता है सचमुच हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये फर्स्ट सेंचुरी के लोग ने किया है। और वर्स 6:10 में लिखा है कि परमेश्वर अन्याय नहीं है, जो कुछ आपने किया है उनकी प्रतिफल जरूर देगा। ब्रदर सैम ने एक्सप्लेन किया कि एक ठंडा पानी भी आपने किसी को पिलाया, परमेश्वर उसमें भी वफादार है, वो उसकी प्रतिफल आपके लिए रखा है। तो ये बहुत प्रोत्साहन है कि हम जो कुछ भी करते हैं हम कभी भी निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारे लिए आशा है एक दिन, और हमारे लिए प्रतिफल भी परमेश्वर ने रखा है। एक चीज मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि वो वर्स 13 यानी इब्रूस लोगों की, इब्रू जात की जो मूल पिता है अब्राहम, यानी विश्वासियों का एक आत्मिक पिता कह सकता है कि आज का दुनिया में, तो वो धीरज और सहनता के लिए परमेश्वर ने एक उदाहरण के रूप में रखा है बाइबल में उसने। यानी जब उसको पुत्र नहीं थे, जैसा ब्रदर सैम ने एक्सप्लेन किया था, जब उसको पुत्र नहीं थे, निराश हो गया। लोग कहते थे कि परमेश्वर ने वादा किया, कब होएगा कब होएगा कब होएगा। वो बहुत सारा निराशा की परिस्थिति में थे, लेकिन उस वक्त यानी 75 to 100 जब तक पुत्र नहीं हो तब तक वो निराशा में भी आशा रखकर परमेश्वर की स्तुति किया। तो ये हमारे लिए बहुत चुनौती की बात है कि हमारे चारों ओर निराशा की बात जरूर होगी। मैं ये नहीं कहता कि निराशा की बात नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए एक उदाहरण अब्राहम परमेश्वर ने रखा है कि वो निराशा की दशा में भी परमेश्वर की स्तुति किया, और वो जो प्राप्त किया आखिरी में। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि वर्स 18 में लिखा है कि दो चीज नहीं बदल सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए हम लोग। परमेश्वर की प्रतिज्ञा और वायदा ये कभी बदलेगा नहीं। यानी परमेश्वर ने आपको कुछ वायदा किया है वो जरूर करेगा। जैसे कि अब्राहम के जीवन में प्रतिज्ञा किया है, देर हुआ, उस देरी के समय में वो निराश भी हुआ, लेकिन वो अंत नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो सही समय पर अब्राहम को दिया गया। उसी समय उसी वक्त हमारे जीवन में भी कई निराशा की आता है, लेकिन 18 वचन हम याद रखना चाहिए कि वो वचन में लिखा है कि वो नहीं बदलता है, उसकी प्रतिज्ञा, उसकी शपथ कभी नहीं बदलता है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर कोई इंसान कोई शपथ खाता है, वो इस तरह से शपथ खाता है कि मेरी माँ की शपथ में वापस ऐसा नहीं करूंगा, मेरे पिता की शपथ में झूठ नहीं कहूंगा। अगर एक इंसान, धरती के इंसान अगर शपथ खाते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं, शपथ खाते जरूर करें। लेकिन परमेश्वर जब शपथ देता है, शपथ खाता है, कितना हम विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर कभी उस शपथ पूरी करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बाइबल एक ऐसा किताब नहीं है कि जो हमको आशाहीन बनाने वाली, डगमगाने वाली या निराश करने वाली किताब नहीं है, पर बाइबल एक ऐसा किताब है हमको एक लंगर की तरह स्थिर करने वाली किताब है। तो हम आशा रखेंगे और प्रभु पर और विश्वास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। I was encouraged by this verse. मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला इस वचन से, जो इब्रानियों 6 का 18 वचन है, जो कहता है कि जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। तो मेरे मन में ये बात आई कि हम जो झूठे हैं, हमें ये जो परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोल सकता, उन्होंने एक वादा दिया है हमें, और उन्हें देने की क्या ज़रूरत थी। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम जो ऐसे झूठे लोग हैं हमें वो एक वादा दें, और वो भी एक कभी जो झूठ नहीं बोल सकता, वैसा एक परमेश्वर जो झूठा नहीं ठहरता, ऐसा परमेश्वर ने हम झूठे लोगों को ऐसा क्यों देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन परमेश्वर का जो दिल है वो कितना बड़ा है कि उन्होंने ऐसे शपथ खाई, और
जैसे अब्राहम से भी उन्होंने प्रतिज्ञा किया, और प्रतिज्ञा करते समय जैसे 13वें वचन में किया है, जब शपथ खाने के लिए किसी को अपनी से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर उन्होंने कहा। तो परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खाई कि जो वारिस के परमेश्वर ने हमें वारिस बनाया, तो वो हमें ये दिलासा भी देना चाहते हैं कि जो मैंने वचन दिया है मैं उससे नहीं हटूंगा। और परमेश्वर को ये सब करने की क्या जरूरत थी? फिर भी क्योंकि उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया, और वो हमें दिलासा देना चाहते हैं कि अगर देरी भी हो गई उनकी प्रतिज्ञा पूरे होने में, हमें सिर्फ प्रभु के वचन में, जो कभी झूठ नहीं बोल सकता, ऐसे प्रभु के वचन में हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने अपने ही ओर से उन्होंने शपथ खाई और कहा कि जो वादा उन्होंने किया है, जो प्रतिज्ञाएं उन्होंने हमें वचन में दिए हैं, वो पूरा करने के लिए वो योग्य हैं और वो उसे पूरा करेंगे। तो ये जब मुझे याद दिलाया, मेरे मन में आया कि परमेश्वर जो झूठे नहीं हैं, जो सच्चे हैं, हमेशा उन्होंने हम झूठे लोगों को ऐसी जो वचन दिया है, अपना वचन दिया है, जो एक लंगर के समान हम हिले और डुले नहीं जब तूफान और आंधी या देरी हो जाए, जब प्रभु की वचन पूरा होने में समय लगता है, तो हमें स्थिर रहने के लिए प्रभु ने हमें अपना वचन भी दिया है कि हम जब भी हम वचन की ओर देखते हैं तब हमें दिलासा मिलता है और हमें दृढ़ता मिलती है कि परमेश्वर ने जो कहा है, ये परमेश्वर के वचन हैं, वो उनसे कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जो वचन है, ये वचन ने मुझे प्रोत्साहन दिया है, इसके लिए मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ।